theory of consumer behavior. Theory of consumer behavior. Again, one of the important topic. Many numerical questions have been asked in the past exams. So, theory of consumer behavior. Basically, we are going to study consumers' behavior in the chapter. Consumers' wants are unlimited, and the resources that are used to satisfy those wants are limited. There is a law of scarcity. लिख लेना. Law of scarcity. First, unlimited wants. It talks about unlimited wants of the human. एक want खत्म हो गए तो दूसरी हो गई तो तीसरी, like that. There is no end, right? So unlimited wants of the consumer. Second, the major problem is that we need resources to satisfy those wants, purchasing power, right? However, wants are unlimited, but the resources used to satisfy those wants are limited. Limited resources to satisfy those wants. To satisfy those wants. Those wants. क्या बोला मैंने? Unlimited wants, and और want satisfy करने के लिए जो resources है, they are right limited in the nature, and that makes it very difficult to satisfy the wants. इसलिए हम wants को priority, कौन से जो पहले priority है उनको पहले satisfy करेंगे, उसके बाद less urgent wants हम satisfy करेंगे, because the resources are limited. You want a bike, you want mobile, you want to go for the movie, right? You want to purchase the goods, clothes, right? There are many wants, but your pocket money is limited. Now you will be prioritizing the your wants. आप इसकी वजह से prioritization आता है. आप priority decide करते हो, आपकी क्या priority है, and जो highest priority रहेगी पहले वो satisfy की जाएगी. समझ में आ रहा है? Reason is very simple, because your money income or the resources are limited. And moreover that, third, those resources have alternative uses. First problem है कि there are wants. उसको satisfy करने के लिए solution है resources. But उसमें problem क्या है कि they are not right, they are limited in the nature. And वो limited है, और उसमें और problem क्या है कि they have alternative uses. So same resources can be put for multiple uses. So हम वो decide करते हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, हम priority decide करते हैं. कौन सी मेरी want सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड जो मेरे रिसोर्सेस है जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है, आई हैव टू चूज द इंपॉर्टेंट यूज. मुझे यूजेस में भी मुझे क्या करना होगा, प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी. एंड देयरफॉर राइट, दिस नेचर ऑफ वांट्स राइट मेक्स लाइक, और ये जो नेचर है उनका, इसकी वजह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वांट्स, हम ऐसे बोलते हैं. Those wants are some of the features of the wants. First feature, अभी हमने देखा unlimited.
Second, single want is fully suitable at a given point of time. At a given point, भले ही wants unlimited है, but single want is satable at a given point of time. Like you are hungry, so obviously that want can be satisfied at a given point of time. समझ में आ रहा है? So wants as such will not end, but single want can be satisfied at a given point of time. Third, differs in intensity. Differs in intensity. Wants differs in intensity. Some are priority, some are not that much priority. Some are urgent, some are not that much urgent. समझ में आ रहा है? So want differs in their intensity. Then some wants are recurring in the nature, like hunger. It is recurring in the nature. You feel hungry, right? You are hungry. ये satisfy भी किया जाएगा, फिर से वो repeat हो जाएगी. So some of the wants are recurring in the nature. Fifth, मैं मॉड्यूल से देख के लिख रहा हूं because there are many जो मुझे important लगते हैं वो मैं ले रहा हूं. Wants are competitive in the nature. They are competitive in the nature. Like substitute satisfies the wants, but right, that want is a competitive. Then 6, they are subjective and relative. And relative means they changes from person to person, and for the same person from time to time and place to place. They differs. जो छोटे बच्चे उनकी वॉन्ट्स अलग है, जो यंग है उनकी वॉन्ट अलग है, जो सीनियर सिटीजन है उनकी वॉन्ट्स अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो पर्सन टू पर्सन वॉन्ट चेंज होती है. देन even for a same person, want changes from time to time. Example, during summer you need suppose AC, you want AC. During rainy season you want umbrella. During winter season you need sweater. So for a same person, the want keeps on changing as time changes. जब आप छोटे बच्चे थे तब आप साइकिल की जिद करते थे. Now you are like insisting for the bike, mobile and etc. The person is same, but as the time has changed, your needs, your wants have changed. So I will say it is a subjective. Person to person change होते हैं, and for the same person, as time changes, wants also changes. Relative, right? Place to place भी change होता है. Example, साउथ इंडियंस की वॉन्ट्स अलग है इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड. महाराष्ट्रियन की फूड के रिलेटेड जो वॉन्ट्स है वो अलग है, एंड जो नॉर्थ के पीपल है उनकी अलग है. मे बी साउथ इंडियन ज्यादा राइस पसंद करते हैं, वही अगर आप बंगाल वगैरह वहां पे देखते हो वहां पे मछली ज्यादा चलती है. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. सो प्लेस टू प्लेस वॉन्ट्स चेंजेस, वही तो है रिलेटिव. रिलेटिव मतलब टाइम टू टाइम चेंज होगा, place to place change होगा for the same person. Then yes, they becomes 7. Wants becomes customs and habits. If we get addicted to some wants, they become habits. And some wants maybe result in tradition, customs, right?
we celebrate the festivals, right? We want to have like free time, हम घूमने बाहर जाते हैं, that becomes like a routine, हम habitual हो जाते हैं उन चीजों के लिए. In such case, those wants becomes customs and habits. Then they are affected by us. They are affected by income, right? जैसे से इनकम इंक्रीज होती है तो वॉन्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, या टाइप ऑफ द वॉन्ट चेंज हो जाते हैं. ठीक है. टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. राइट. एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आपके वॉन्ट्स, लाइक एडवर्टाइजमेंट मेक्स यू अवेयर अबाउट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड मे बी इफ यू फाइंड सम प्रोडक्ट यूजफुल, you may need it, you demand that product, that service, and that leads to a new want. So these are some of the right features of the wants. It याद नहीं रखने, even I don't remember them, but just पता होनी चाहिए कि these are some of the features of the wants. पहले तो मैंने बोला law of scarcity, it means unlimited nature of the wants, limited resources, and those resources have alternative uses. So it talk, right, ये जो तीन चीज है that makes law of scarcity. हमें समझना है wants. Basically there are three types of wants. लिख लेना, three types of wants. First is necessaries. Then comforts. And the last one is luxuries. Basically a human first tries to satisfy necessaries, then he will go to the comforts, and after comforts he will try to satisfy luxuries. As you become rich, comforts may become necessities for you, luxuries may become necessities for you, and this changes from person to person. किसी के लिए luxuries, एक बंदे के luxuries किसी और के लिए वो necessities हो सकता है. So this classification changes from person to person as income changes, right? Wants also changes. Basically necessities are those wants which are, right, very basic wants, means they are very important for the survival of the persons. So necessities can again divide into three parts. First, necessities for existence. For existence. Necessities for existence, I mean वो necessities which are very very important for your survival. Without them you cannot survive. Minimum food, minimum shelter, minimum clothes. Are you getting my point? They fall under necessities of the existence. Without them no one can survive. Second, necessaries for efficiency. Efficiency. These are those goods, or right, need for those goods which help to improve the efficiency. Example, education. मतलब they improve the efficiency, they help in creating the productivity. So वो necessities हैं, but like example, minimum amount of the food, that is
एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, नेसेसिटीज फॉर एग्जिस्टेंस. बट healthy food will fall under necessities for the efficiency. Healthy food will create productivity, will increase the efficiency. Then education will fall under this category. मैंने बोला शेल्टर, मिनिमम शेल्टर इज लाइक एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. हाउएवर राइट, उससे बेटर प्लेस ऑफ फॉर लिविंग, सैनिटाइजेशन वगैरह सब चीजें, दे विल फॉल अंडर necessities for the efficiency. So both are necessities, but existence matlab they are very very basic things, and usse thoda better is necessities for the efficiency. And third are conventional necessities. Conventional necessities, actually they are not necessities, to be very frank, but because right we belong to a society, we have to follow some traditions, some customs, and uske wajah se some things become necessities. They are not important for your existence, they are not important for improving your efficiency. However, as you are living in a group of people, you have to right, you demand them because other people's also demanding the same. Like example, Diwali के time like बच्चे क्रैकर्स डिमांड करते हैं बिकॉज बाकी सब बच्चे वो परचेस करते हैं. सो लाइक इट बिकम्स नेसेसिटीज. घर में भी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, रीजन सब लोग वो मना रहे हैं. नहीं मनाओगे तो ऐसे नहीं कि लाइक आप मर जाओगे, ऐसे नहीं. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द इफिशियंसी, बट इट हैज रिजल्टेड आउट ऑफ द ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिचुअल्स जिसके साथ आप बाइंडिंग हो. सो मैंने बोला नेसेसिटीज और नेसेसरीज आर ऑल दोज वांट्स which are very basic. All those wants can be again classified into three things: existence, necessaries for existence. All those things which are demanded by the human for his existence are necessities or necessaries for the existence. All those things or services which are demanded by the like human for improving his efficiency, improving his productivity, those are necessaries for the efficiency. And all those demand for goods and services which is result out of the customs, traditions, rituals to which you belongs, right, unke liye main bolunga that is a necessity. But which necessity? Conventional necessities. Comforts lies between necessities and luxuries. मतलब comforts makes your life comfortable. Luxurious नहीं बनाते but comfortable बनाते. Example, a student needs textbook, books लगते हैं उसको पढ़ने के लिए. So I will say it is for efficiency. वो necessity है. Books for a student is a necessity. Which necessity? Efficiency. But उसको proper table बैठने के लिए, chair, समझ में आ रहा है, लैंप, ये सब चीजें मेक्स हिज स्टडी कंफर्टेबल. तो आई विल से देन डिमांड फॉर टेबल, चेयर, लैंप बाय स्टूडेंट फॉर हिज स्टडी पर्पस, उसकी जो डिमांड रहेगी या जो वांट है हम उसको कंफर्ट बोलेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कंफर्ट्स मेक्स स्टडी कंफर्टेबल फॉर दैट स्टूडेंट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, comforts makes your life comfortable, not lavish, not like luxurious, but yes, more comfortable. So comforts are those wants which lie between necessities and luxuries. वो उनके बीच में होते हैं, ना ही necessities ना ही luxury, in between that. And luxuries are something expensive. ठीक है, समथिंग एक्सपेंसिव. यू वांट टू ट्रैवल,
आपको ऑफिस में से आना है जाना है, एंड दैट पर्पस यू नीड समथिंग, एक व्हीकल चाहिए, दैट इज अ नेसेसिटी फॉर यू. सो आपने एक नॉर्मल टू व्हीलर ले ली, नेसेसिटी बन गई. बट उसमें आपको पल्सर चाहिए या हाई एंड की व्हीकल ही चाहिए, तो वो एग्जांपल आप कंफर्ट में डाल सकते हो, दैट मेक्स कंफर्टेबल. नहीं, आपको फोर व्हीलर चाहिए, एकदम हाई एंड फोर व्हीलर चाहिए, लाइक ऑडी, बीएमडब्ल्यू, राइट. अगर वैसे आपकी नीड्स है, वैसे आपके वांट्स है, वैसे आपकी डिमांड है, तो आई विल से इट इज ए लग्जरी. इट इज एक्सपेंसिव, it elevates your standard in the society. All those wants are luxurious wants. So basically wants are divided into three types: necessities, comforts, luxuries. Necessities again तीन type में: existence, efficiency and conventional. ठीक है. So ये है law of scarcity. Then आगे consumer behavior is studied under, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल लिख लेना. कंज्यूमर बिहेवियर, behavior of consumer is studied under two streams. One, cardinal measurement approach, or consumer behavior is actually the utility analysis. Is utility analysis. Is utility analysis. Utility analysis or consumer behavior can be studied under two segments or two streams. One, cardinal measurement approach. Means we assume that utility can be measured in numbers, right? We assume that utility can be measured in numbers. That is cardinal measurement approach. It is given by Alfred Marshall. And if you are studying it for single goods, single want, I mean single commodity or service, as the case may be, then हम ये स्टडी करते हैं सिंगल कमोडिटी. मीन्स कंज्यूमर विल स्पेंड हिज एंटायर इनकम on single commodity, single service. He has a single want, and that single want will be satisfied by a single commodity or single service, and he is ready to spend his entire income on that commodity. अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ डीएमयू स्टडी कर रहे हैं. लॉ ऑफ डीएमयू. सो लॉ ऑफ डीएमयू में हम क्या स्टडी करते हैं? When consumer spends his entire income on single unit or single commodity, unit नहीं, single commodity और single service, वो हम स्टडी करते हैं अंडर लॉ ऑफ डीएमयू. सेकंड, मल्टीपल वांट्स. That is, consumer spends his entire income not on single want, actually he spends on multiple wants, multiple commodities, multiple services.
So that is multiple commodities and services or services. फर्स्ट थिंग जो हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं, हम एक्चुअली यूटिलिटी एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं. यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूमिंग यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली. उसमें दो अप्रोच है. एक है फॉर ए सिंगल कमोडिटी, सिंगल वॉन्ट, DMU, एंड दूसरा है फॉर मल्टीपल वॉन्ट्स, मल्टीपल कमोडिटीज. राइट, उसके लिए हमारे पास है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. Law of equimarginality, EMU. And the second approach, which is better than this approach, that cardinal approach is better approach, ordinal approach. Which is given by Hicks and Allen. Which is given by Hicks and Allen. ठीक है, देखते हैं. ये मार्शल ने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, और ये हिक्स एंड एलन ने दिया है. ठीक है, दिस इज indifference curve approach. Indifference curve approach. मैं समरी दे रहा हूं आप लोगों को, हम हर चीज समझने वाले हैं. यहां पे लिख लेना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. We have to find out when consumer attains equilibrium under three things. यही तो हमारा ये फाइनल आउटपुट रहेगा ये स्टडी का. ये हम फिल करेंगे, इसके बाद 2-3 लाइन रहने देना, 2-3 लाइन रहने देना, बिकॉज यहाँ पे मुझे फॉर्मूलेज लिखने हैं. ठीक है, आगे. सो ये है हमारा स्कोप ऑफ द स्टडी. ये फर्स्ट टाइम पास है. ठीक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग. नाउ दिस इज अ मेजर कंटेंट. Utility analysis. Utility analysis can be studied under two heads: cardinal measurement and ordinal measurement. Cardinal measurement given by Alfred Marshall. Ordinal measurement given by Hicks and Allen. Cardinal measurement, right, again for single commodity and multiple commodities. Single commodity के law of DMU applicable होता है, multiple commodities के लिए law of EMU applicable है. And उससे भी better एक अप्रोच आया, ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय हिक्स एंड एलन. उसमें हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच स्टडी करेंगे. एंड देन वी विल अराइव एट ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर ऑल द लॉज. ठीक है, सो दिस इज द स्कोप. ये हमें स्टडी करना है पूरे इस चैप्टर में, ये तीन, DMU, EMU एंड इंडिफरेंस कर्व. लेट्स सी. सो सबसे पहले व्हाट इज अ यूटिलिटी, दैट एवरी, ये हमारे 12th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से था, एंड एवरीबॉडी नोज. Utility is, what is the utility? Utility is want satisfying power of a commodity. It is the capacity of a commodity to satisfy human want. Any commodity, right, which satisfies a want is said to possesses the utility. Example, this pencil may not be useful for you. It may not have utility for you, but this pencil has a utility for me. जिस पेन से आप लिख रहे हो, right, that pen gives you utility to you.
दूसरा, राइट, एनीथिंग which give utility will be demanded. So demand analysis is dependent on the utility analysis. Utility helps you to find out the demand. Actually, demand is totally based on the utility. So utility is that feature of the commodity because of which there is a demand for that commodity. Example, calculator has got utility for the CAs or students of the commerce, normal calculator. So we say we have got utility and therefore we demand it. Stethoscope has got utility for the doctors and therefore they demand it. Ambulance has a utility for the hospital and therefore, right, hospitals demand ambulance. Try to understand. So everything which is in the market may not be useful for you, may not give utility for you, but as it is in a market, it means it gives utilities to someone else. मैं मार्केट से जाता हूँ और मुझे दिखता है वहां पे पियानो का लाइक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का शॉप है. आई डोंट प्ले दोस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सो मे बी मेरे लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है. डज नॉट मीन वो किसी और के लिए उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी. समझ में आ रहा है? उस कोई ना कोई कस्टमर्स रहेंगे, कोई ना कोई कंज्यूमर्स रहेंगे जिनके लिए उसकी यूटिलिटी है एंड इसलिए वहां पे वो शॉप है. एग्जाम्पल, जो ओल्ड टाइपराइटर्स होते थे, देखो इनिशियली उनकी यूटिलिटी थी, बट लेटर ऑन जैसे कंप्यूटर्स आ गए, प्रिंटर्स आ गए, तो ऑब्वियसली टाइपराइटर्स की यूटिलिटी कम हो गई एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर्स की यूटिलिटी इंक्रीज हो गई एंड टाइपराइटर्स की यूटिलिटी डिक्रीज हो गई एंड ऑलमोस्ट आज टाइपराइटर्स देखना भी मुश्किल हुआ है. देन सो कोई भी कमोडिटी अगर मार्केट में है तो उसकी यूटिलिटी है. अनदर एग्जांपल, ए पेरेंट मेट मी यस्टरडे और वो मुझे बोल रहे थे कि सर अभी तब सब ऑनलाइन चल रहा है एंड उसके वजह से उनको उनके बेटे को जो अभी मे बी आई डोंट नो 10th या कोई 10th 7th 8th 9th 10th में, बोले उसको भी हमें मोबाइल लेके देना पड़ा. एक्चुअली पहले जब फेस टू फेस वो स्कूल में जाता था, वहां पे सीखता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस मोबाइल की यूटिलिटी उसको नहीं थी. मोबाइल वाज नॉट possessing utility for him, but now he is taking education using the mobile and therefore that mobile has got utility for him and therefore that parent have demanded, right, the commodity that is mobile or that student is demanding the mobile. So मैंने utility is the capacity of a commodity, right, which capacity want satisfying capacity. लिकर मे बी आप कंज्यूम नहीं करते, बट जो कंज्यूम करता है उसके लिए उसकी यूटिलिटी है. सिगरेट मे बी आप स्मोक नहीं करते, बट देयर आर सम स्मोकर्स हु कंज्यूम इट एंड देयरफॉर दे हैव गॉट यूटिलिटी. ड्रग्स, you are not addicted to drugs, however there are some consumers who are addicted to drugs and they have got utility. ड्रग्स नहीं तो उनका चलता नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं, देखो वो पढ़ने के लिए वो कुछ तो रहता है, वो लिपि रहती है उनकी, देखो वो ब्रेनी या कुछ तो बोलते हैं उसको, वो बुक्स होते हैं, देखो वो बुक्स हम डिमांड नहीं करते बिकॉज हमें उसकी यूटिलिटी नहीं है, बट उनको यूटिलिटी है एंड देयरफॉर दे डिमांड इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हर बंदे को अलग अलग, हर बंदे की अलग अलग वांट है. To satisfy those wants, they find a product which will give the utility. मतलब जो want है उसके लिए कौन से ऐसी कम्युनिटी है जो वो want satisfy करे. I want to write, therefore I demand notebook pen. Try to understand. Simple चीज है. Today I want to take lectures and therefore we are demanding for the Zoom or some virtual apps जिसके थ्रू हम लेक्चर्स ले सकते हैं. सो उसकी डिमांड हम कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो वांट है टीचिंग ऑनलाइन, वो एप्स हमें हेल्प करते हैं, वो एप्स वो हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं एंड देयरफॉर दैट ऐप हैज गॉट यूटिलिटी, राइट.
to satisfy my want, and therefore I am demanding that app. And therefore there is a more demand for such apps or such platforms. Try to understand. Today, to save our life, to be protected, right, we are demanding for the sanitizers. So demand for sanitizer क्यों है? Because people want to, right, wash their hands. उसके लिए वो आज देखो ना कितने सारे, आप कोई भी प्रीमाइसेस में जाओ, आपको वहां पे स्टैंडीज मिलेंगे वहां, राइट, वो रखते हैं और वहां पे सैनिटाइजर रखते हैं. आप प्रेस करो पैर से, वो सैनिटाइजर आ जाएगा हाथ पे और आप, राइट, हाथ धोगे उससे, साफ करोगे. पहले तो डिमांड नहीं करते थे उसकी, बट टुडे इट इज अ रिक्वायरमेंट, and that commodity helps you to satisfy that. So I will say that has got a utility. So simple words mein utility is, right, want satisfying capacity, and everybody knows this because this was done in 12th and everyone has done it. So utility is, likh lena, want satisfying capacity. Capacity of a commodity. Of commodity. ठीक है. Then features मैं शॉर्ट में ले लूंगा, ज्यादा डीप में नहीं. फर्स्ट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन द नेचर, राइट. Subjective in the nature means it, utility of a commodity changes from person to person. So एग्जाम्पल, हमारे लिए कैलकुलेटर्स यूजफुल है, डॉक्टर्स के लिए टेलिस्कोप यूजफुल है, मेरे लिए, राइट, जब मुझे लिखना होता है तो आई नीड अनदर काइंड ऑफ पेंसिल, और आपको जब लिखना है तो यू रिक्वायर अनदर टाइप ऑफ पेन. समझ में आ रहा है? तो पर्सन टू पर्सन वांट्स चेंज होते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली उनके डिमांड फॉर द कमोडिटी चेंज होती है. द कमोडिटी, राइट, कोई कमोडिटी उसकी वांट पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, उसकी यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट यूजफुल फॉर मी, दे डू नॉट गिव यूटिलिटी टू मी, बट दे गिव यूटिलिटी टू द पर्सन हु knows how to play them. So utility of the commodity is a subjective in the nature, means it changes from person to person. Changes from person to person. दूसरा, it is a relative in the nature, right? ये 12th में किया है हमने, relative in the nature. और महाराष्ट्र बोर्ड ने यही किया है, राइट. सेकंड पार्ट तो ऑप्शन में था. रिलेटिव इन द नेचर मींस इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम फॉर द सेम पर्सन, फॉर सेम पर्सन. जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में एग्जांपल दिया, हमें समर में वी रिक्वायर एसी, कोल्ड ड्रिंक्स. समझ में आ रहा है? इन रेनी सीजन वी रिक्वायर रेनकोट्स. समझ में आ रहा है? फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, राइट, रेनी सीजन में इतने यूजफुल नहीं रहते. देन ड्यूरिंग विंटर वी रिक्वायर स्वेटर्स, हॉट, लाइक आप हॉट ड्रिंक्स, या आप उसको बोल सकते हो टी, कॉफी, ये सब चीजें चाहिए. कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग समर. सो एक ही बंदे के लिए जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे यूटिलिटी चेंज होती है ऑफ ए कमोडिटी. ऑन सिमिलर बेसिस, जैसे जैसे प्लेस चेंज होगी यूटिलिटी विल आल्सो चेंज. थर्ड, हम बोलते हैं इट इज इथिकली न्यूट्रल, राइट, और कलरलेस. इथिकली न्यूट्रल, actually word is colorless.
What do you mean by it is colorless? I mean, a commodity has got a utility, whether it is useful or not useful, ethical or unethical, good or bad. It is beyond that. Utility concept is beyond that. Example, like जो हमेशा example देता है वही देता हूँ. Like a knife is a useful for a housewife to chop the vegetables. At the same time, it has got a utility for the murderer to kill someone. A gun gives utility for a soldier to protect the country or the citizens of that country. At the same time, the same gun gives utility to the terrorists to kill those people. Try to understand. So utility is ethically neutral, ethically colorless. कमोडिटी आप उसको कैसे यूज करते हो डिपेंड्स, सबके लिए यूजफुल होगी वो. सो आई से वेदर इट इज गुड और बैड, नाइफ का यूज वेजिटेबल चॉप करने के लिए, कट करने के लिए या मर्डर करने के लिए यूज करना है. नाइफ इज यूजफुल फॉर बोथ द पर्सन, किलर के लिए भी और हाउसवाइफ के लिए भी. हाउएवर उसका यूज गुड है या बैड है, इथिकल है अनइथिकल है, मॉरल है इमोरल है, राइट, इसका सोचन ये दैट इज इररिलेवेंट. So it is beyond that, and therefore we say it is ethically colorless, like neutral. It does not talk about good or bad, right? Moral, immoral, ethical, unethical. As right, अगर किसी के लिए वो useful है, तो for that person the commodity is giving utility. Number 4, it is not same as usefulness. Generally, we say utility means usefulness of the commodity. If commodity is useful, we say we have got a utility from that. But always, it is not same. Means some commodities may not be useful. Still, they have got utility, like alcohol, drugs, cigarettes. They are injurious to health. They are not good for health. They are not useful. Still, people demand them because people have got utility from them. Medicine is useful, तो उसकी यूटिलिटी भी है, वो यूजफुल भी है. ऑन द कॉन्ट्ररी, सिगारेट्स आर नॉट यूजफुल, स्टिल दे हैव गॉट यूटिलिटी. जिसको चाहिए वो परचेस करेगा, फिर वो यूजफुल है या नहीं वो सोचा नहीं जाएगा. सो utility does not always mean usefulness. Yes, it is usefulness, but that is not always correct. Similarly, number 5, it is not same as, right, pleasure. Some commodities gives utility, at the same time they gives pleasure. Like you want to go for the movie, तो उस राइट अच्छी मूवी है, आपका टाइम पास हो जाता है, इट गिव्स प्लेजर टू यू, यूटिलिटी भी है एंड अकम्पनीड बाय द प्लेजर. हाउएवर, लाइक आप जिम में जाते हो एंड आप जिम करते हो, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो दैट मे नॉट बी लाइक आपको उससे प्लेजर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. समटाइम्स वो आपके बॉडी पे टोल भी करता है वो, राइट. ज्यादा अगर आप जिम में जाओगे या ज्यादा करोगे किसी दिन, राइट, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो भी, राइट, यू मे सफर फ्रॉम द पेन. इंजेक्शन इज अनदर एग्जांपल, राइट. मेडिसिन इज अनदर एग्जांपल. दैट हैज गॉट अ यूटिलिटी फॉर द पेशेंट. जिसको उसकी जरूरत है उसके लिए यूटिलिटी है, बट वो हैप्पीली नहीं लेता वो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंजेक्शन लेने से पेन होता है, राइट. दवाई लेने से, राइट, आप हंसते हंसते दवाई नहीं लेते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समटाइम्स बहुत, राइट, दे आर पेनफुल इन नेचर, लाइक वो आपको पेन क्रिएट करेंगे, बट वो जरूरी भी होता है फॉर योर हेल्थ टू रिकवर योर सेल्फ. सो इट मे नॉट बी ऑलवेज सेम एज प्लेजर. नंबर 6, utility and satisfaction are different, not always same. Satisfaction, because utility is anticipated satisfaction. बराबर ना, utility is anticipated satisfaction. Utility
कैन ए कंज्यूमर एज ए यूटिलिटी इवन इफ इट डज नॉट कंज्यूम द गुड्स. क्या बोला, ध्यान देना. यूटिलिटी इज एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, कि मैं ये कमोडिटी कंज्यूम करूंगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ये जो आपकी फीलिंग्स है उसको यूटिलिटी बोला जाता है. मतलब आपने कंज्यूम करना ये नेसेसरी नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूटिलिटी. लाइक एग्जांपल, मैंगोज है मार्केट में, हम बोलते हैं हमें इसकी यूटिलिटी है, इवन दो वी आर नॉट कंज्यूम्ड, स्टिल वी से उसकी यूटिलिटी है. कंजम्पशन के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज एक्चुअल सेटिस्फैक्शन. कंजम्पशन के पहले जो सेटिस्फैक्शन है, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन इज अ यूटिलिटी, एंड कंजम्पशन के बाद जो रियलाइज्ड होता है दैट इज एक्चुअल सेटिस्फैक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई कमोडिटी may give you anticipated satisfaction, but after consumption it will actually not give you satisfaction. Example, सलमान भाई की मूवी आती है, हमें लगता है यार क्या मूवी रहेगी, ट्रेलर वगैरह आता है, भाई हाथ में ग्रेनेड लेके गाड़ी वगैरह उड़ाता है, लगता है क्या जबरदस्त मूवी रहेगी, और जब मूवी देख के आते हैं तो गालियां देना स्टार्ट करते हो. मतलब जब ट्रेलर आया था तो लगा यार सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज अ यूटिलिटी, एंड जब मूवी देख के बाहर आते हो तो गालियां देना स्टार्ट करते हो, सो इट इज नॉट द सेटिस्फैक्शन. ऑन द कॉन्ट्री, कोई अच्छी मूवी जाके देखते हो, राइट, वो देखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, तो राइट, यूटिलिटी मे बी सेटिस्फैक्शन बट नॉट ऑलवेज. सो यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट. 7, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट. इंटेंसिटी. इफ जितनी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी उतनी यूटिलिटी भी ज्यादा रहेगी. कोई एडमिट है एंड ही रिक्वायर्स ब्लड, राइट, इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर जिसको वो ब्लड देगा, राइट, दैट ब्लड विल हैव लाइक द हाईएस्ट यूटिलिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिकॉज इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. आधा टाइम कोई बीमार नहीं, आप उसको बोलते तुझे ब्लड चाहिए क्या, वो बोलेगा नहीं चाहिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो इंटेंसिटी फॉर हिम, राइट, इट इज नो लॉन्गर यूजफुल, और आई विल से यूटिलिटी नहीं है. सिंपल है. इफ यू आर हंग्री, राइट, अगर आपको बहुत भूख लगे तो आप कुछ भी खाओगे. रीजन, राइट, बिकॉज इंटेंसिटी इज एट हाईएस्ट लेवल, इट इज पीक, सो दैट कम्युनिटी विल गिव यू more satisfaction, more utility. But if you are like आपका खाना वगैरह हुआ है और हम आपको बोलते हैं और खाना खा लो, तो आप नहीं बोलोगे. सिंपल है. बिकॉज नाउ इंटेंसिटी इज एट द लोएस्ट लेवल. सो इफ इंटेंसिटी इज मोर, यूटिलिटी विल बी also more, or the community will give you more utility. And if intensity is less, the community will give you less utility. Very simple. Number 8, utility or demand depends on the utility. Demand depends on the utility. ये सब 12 के पॉइंट्स है, मैं कुछ अलग नहीं, और मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं. Utility is a basis of the demand. A commodity is demanded only if it has got utility for the consumer. Try to understand. अगर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हुआ है, देन यू विल डिमांड द वॉकर, अदरवाइज यू विल नॉट डिमांड द वॉकर. सो जब एक्सीडेंट होगा तो ही वो वॉकर आपको क्या देगा, यूटिलिटी देगा, एंड देयरफॉर देयर इज अ डिमांड फॉर द वॉकर ऑन योर साइड, अदरवाइज यू विल नॉट डिमांड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो डिमांड क्यों है? वॉकर की डिमांड मैं कब करूंगा, जब मुझे उसकी यूटिलिटी होगी तो ही, अदरवाइज आई विल नॉट. सो demand is based on the utility. Utility decides the demand for the commodity. Actually, right, law of DMU helps you to derive the demand curve. वो हम समझेंगे. Now, इसके सिवा कोई और पॉइंट्स थे क्या जो 12th में, जितना मुझे याद थे मैंने कवर किए. इसके सिवा कुछ थे क्या पॉइंट्स? सब्जेक्टिव, रिलेटिव, इथिकली कलरलेस, राइट, not same as usefulness, pleasure, satisfaction, intensity of want, right?
it is not measurable. अच्छा, it is abstract, sub, right? Psychological concept. Yes, लिख लेना point खाली. It is abstract or it is psychological concept, right? Intangible in the nature, ऐसे बोल सकते हो आप. Then it is not measurable. Utility is not measurable. Actually, we cannot measure in terms of numbers. Cardinal measurement possible नहीं है. I cannot say कि this community give me this much utility. जैसे हम like बोल नहीं सकते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं. We cannot quantify. इसलिए इतने सारे songs बनते हैं और कुछ भी songs बनते हैं. To quantify the love, the like suppose एक लवर दूसरे लवर को उसका प्यार लाइक इजहार करना चाहता है, तो वो बोलेगा मैं फूल तारे नहीं, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा. फूल तो कोई भी लाएगा, ठीक है, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा. तो ही ट्राइज टू टेल, ही ट्राइज टू कम्युनिकेट द अमाउंट ऑफ द लव दैट ही हैज. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल दैट इज नॉट सफिशिएंट. और राइट, वो एग्जैक्टली हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते. ऑन सिमिलर बेसिस द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट, the pleasure that you get, or the usefulness that you get from the commodity may not be like quantified in numbers. उसको बोला जाता है cardinal measurement possible है, is not measurable in numbers. So these are some of the points, right? जो utility के features है. Utility, want satisfying power of a commodity and its features. और मॉड्यूल में एक एक पैराग्राफ में खत्म किया, वो ज्यादा डीप में नहीं गए. जस्ट एक रिवीजन. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द यूटिलिटीज. टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज लिख लेना. देयर वर 6 टाइप्स आई थिंक. देखते हैं एक एक. प्लेस यूटिलिटी, राइट? By changing the place of consumption, we can increase utility or we can add the utility. Example, apples are very abundant in the Kashmir and therefore their utility over there is less. So they make it available where it is not abundantly available और जहाँ पे वो scarce है. So abundant जहाँ पे वो ज्यादा available है, वहां से वो जहाँ पे वो कम available है वहां पे लेके आएंगे, तो इट विल क्रिएट वैल्यू. वहां पे वैल्यू एडिशन होगी, यूटिलिटी एडिशन होगी. सो चेंज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दैट विल क्रिएट द यूटिलिटी. दैट यूटिलिटी इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी. एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स यू टू क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी. Transportation helps you to create the place utility. Second, लाइक महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी, वो पुणे में आते तो उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, बिकॉज पुणे में वो अवेलेबल नहीं है, तो महाबलेश्वर से पुणे में लेके आ गए तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए इट कमांड्स मोर प्राइस. जितनी ज्यादा यूटिलिटी उतनी उसकी प्राइस भी ज्यादा रहेगी. ये भी राइट. अनदर लाइक वन में एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस. प्लेस यूटिलिटी हो गया. फिर आता है टाइम यूटिलिटी. change the time of consumption, you can create the utility. Place utility में बोला change the place of consumption, utility is created. Time utility में बोल रहा हूँ change the time of consumption, utility can be created or added. Like example, mangoes वगैरह store किए जाते हैं, बराबर, and they are made available in off season. जो seasonal products होते हैं उनको पूरे साल मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है और सीजन में अवेलेबल किया जाता है, सो दैट दे कमांड मोर प्राइस. एग्जांपल, या उनको ऑफ सीजन में भी अवेलेबल किया जाएगा बाय वेयर हाउसेस. हम वेयर हाउसिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी. हम स्टोर करते हैं एंड जब उन वो इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे तब उनको अवेलेबल करवा के देंगे, सो दैट राइट
we will come, right, they will command higher price or they will give more utility. So warehousing creates time utility. Then third, another example of time utility is overdraft. Best example, overdraft is a facility wherein you can draw money beyond your balance. जब आपको जरूरत है तब वो अवेलेबल करवा के दिया जाएगा, तो दे कैन चार्ज हायर इंटरेस्ट. So overdraft is another example of the time utility. Banking creates time utility. जब आपको जरूरत है तब आपको वो पैसे या क्रेडिट अवेलेबल करवा के देते हैं. So credit made available when required is they are creating time utility. Next, third, form utility, right? Change the form, change the shape, input से output बनाओ, right? And add the utility. By changing the form, by changing the shape, by converting input into output, utility is added. That is called as form utility. Example, normal wood and उसको अगर furniture में convert करते हो, furniture will give more utility than the wood. समझ में आ रहा है? कीचड़ है और कीचड़ से आपने पॉट बनाया, so pot will give more utility, it will fetch more price, it will command more demand. So by changing the form हम utility add कर रहे हैं. Manufacturing process creates form utility. Manufacturing processes create form utility. They change input into output and they add value to that. Then number 4, ठीक है, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, फॉर्म हो गया. सर्विस यूटिलिटी. What is service utility? We say professionals create service utility. Not only professionals, even anyone can create service utility. Example, ट्रांसपोर्टेशन में जो ड्राइवर है, ही इज क्रिएटिंग अ सर्विस यूटिलिटी. वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल करवा के दे रहा है. कूली प्रोवाइड सर्विसेज एट ए रेलवे स्टेशन, दे आर क्रिएटिंग सर्विस यूटिलिटी. समझ में आ रहा है? सो सर्विस, राइट, सर्विस यूटिलिटी इज not only created by professionals. CA gives like financial services, lawyer gives legal services, doctor gives health services, health related services. Are you getting my word? Teacher teaches, they are giving education related services. समझ में आ रहा है? So those things create the utility, and that utility is called as service utility. Anyone who provides the services, may be professional or otherwise, जो भी सर्विस देता है, he is creating some utility. पोस्ट, लाइक हमने आपको कुरियर किए बुक्स, सो जो पोस्ट वाला है, जो ये कुरियर वाला है, ही इज गिविंग सर्विस. वो सर्विस यूटिलिटी भी दे रहा है, एट द सेम टाइम वो प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है. वो बुक्स जो हमारे यहाँ पे पढ़े हैं, क्लासेस में पढ़े हैं, वही अगर आपके घर में आएंगे, तो दोज विल बी यूज्ड. उसकी यूटिलिटी ज्यादा रहेगी देन दे आर इन क्लास. आप यू विल स्टार्ट यूजिंग देम, यू विल स्टार्ट रीडिंग देम, दे विल गिव यू मोर यूटिलिटी. सो कुरियर वाला सर्विस यूटिलिटी भी दे रहा है, एट द सेम टाइम, राइट, वो प्लेस यूटिलिटी भी, राइट, जनरेट कर रहा है या क्रिएट कर रहा है. सो सर्विस यूटिलिटी. नंबर 5, पोजेशन यूटिलिटी. यहां पे लिखो सर्विस प्रोवाइडर्स. हु क्रिएट्स द यूटिलिटी पता होना चाहिए.
Service providers creates service utility. Now possession utility. What do you mean by possession utility? By getting the possession of the commodity or the service, you create the utility. Purchase and sale. Creates possession utility. Example, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, and now they have constructed 100 flats and it is in their inventory. It is not creating any value addition, it is not creating any utility. But जब वो फ्लैट कोई परचेस करेगा बायर, एंड जब वो रहना स्टार्ट करेगा, नाउ इट विल गिव द यूटिलिटी टू द बायर. सेलर को उसकी यूटिलिटी नहीं है, बट बायर हैज गॉट द यूटिलिटी. जो बुक्स क्लास में पढ़े हैं, जब आपके हाथ में आएंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम, दे विल क्रिएट मोर यूटिलिटी देन दे आर इन क्लास. Once you get possession, you start using it, and therefore, right, utility increase होती है. By transfer of possession, the possession utility is created. By transfer of ownership, possession utility is created. Generally, purchase and sale transactions create possession utility. Seller के पास वो inventory है. Example, ABC में, अप्पा भवन चौक में इतने सारे बुक डेपो है, इतने सारे बुक स्टोर्स है, but right, कोई भी बुक स्टोर वो बुक्स नहीं पढ़ता. But when student buys those books, right, the same book will give him more utility than the seller. सेलर वो सेल पे रखता है, वो कभी पढ़ता भी नहीं. बट जब वो स्टूडेंट परचेस करेगा, बुक वही है, बट नाउ इट विल गिव मोर यूटिलिटी टू द स्टूडेंट. सो बाय ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम द सेलर टू बायर, बायर गेट्स यूटिलिटी, एंड देयरफॉर सच यूटिलिटी इज कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी. या आप ऐसे बोलते हो, यार ये चीज अगर मेरे पास होती तो मैं उसको अच्छी तरीके से यूज करता. मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजेशन यूटिलिटी. अगर आपके पास होती तो आप उसको अच्छी तरीके से यूज करते, मतलब आप उसकी अच्छी यूटिलिटी डिराइव करते. नंबर आई थिंक लास्ट है 6, नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज यूटिलिटी. By gaining the knowledge about the product, right, utility can be increased. Example, I can give an example. मेरा बहुत funny example है. When I 11th-12th में मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, because mobiles were इतने कॉमन नहीं थे उस टाइम. एंड सीपीटी मतलब 12th के बाद जून में मेरी सीपीटी हुई, एंड देन आई आस्क्ड माय फादर टू गिव मी मोबाइल. मैंने फर्स्ट थिंग जो खुद होके मांगी होगी मेरे पापा को तो मोबाइल हो. एंड लेटर व्हेन आई पास सीपीटी, मैंने उनसे बाइक मांगी, बिकॉज आर्टिकलशिप के लिए क्लाइंट प्लेस पे जाने के लिए ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास खुद का व्हीकल हो. क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. नाउ जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्या एग्जांपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो जो मैं 12th के बाद जो मोबाइल लिया, तो पापा ने मुझे वो N73 नोकिया की सीरीज थी, वो N73, राइट, तब वो बेस्ट मोबाइल था N73. बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उसके यूज ही नहीं पता थे. एंड देन वो मैंने मोबाइल लिया, हफ्ते भर में खाली कॉल आते तो रिसीव करता था. एंड आई एम नॉट दैट टेक सेवी पर्सन. मैं जितना मुझे पता है, जितना मेरे लिए उतना ही मैं यूज करता हूँ. तो मैं जब बीएम कॉलेज में फिर से गया, मतलब घर से जब कॉलेज में फिर से गया, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास भी सेम मोबाइल था, और हम दोनों बीएमसीसी के जिम खाना पे कट्टा पे बैठे थे दोनों. एक मैच देख रहे थे, उधर क्रिकेट खेल रहे थे. तो उसने मुझे बोला, तूने मोबाइल लेकर? मैंने बोला हाँ ये मोबाइल है. तो उसने बोला कैसे है मोबाइल? मैंने बोला मुझे तो इसके ज्यादा फंक्शंस नहीं पता है, ये 2-3 फंक्शंस पता है. एंड देन ही गिव मी ट्रेनिंग. 15-20 मिनट उसने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग, जूम इन जूम आउट वगैरह सब चीजें
उसमें भी जो जो अलग अलग हो सकता है वो सब समझाया. एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग द मोबाइल इन अ बेटर वे. एग्जाम्पल. So after gaining the knowledge, we start using a product in a better way. So that utility, which right, वो मैं यूज कर रहा था, ऐसे नहीं कि वो मोबाइल मेरे लिए यूटिलिटी नहीं था, मेरे लिए यूटिलिटी थी. बट जब उसने मुझे ट्रेनिंग दे दी, प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद मैं उसको और बेटर वे से यूज करने लगा. सो यूटिलिटी इज एडेड. दैट इज ए नॉलेज यूटिलिटी. एग्जाम्पल. When you start knowing the shortcuts of you, right, shortcuts like आप कैलकुलेटर से आप शॉर्टकट मेथड्स फॉलो करके आप लॉग निकाल सकते हो, इंटरेस्ट निकाल सकते हो, राइट. दैट मेक्स योर लाइफ इजी. एक्सेल, गेनिंग द नॉलेज अबाउट द एक्सेल, यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. टैली, जब आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट करोगे तो योर अकाउंटिंग विल बिकम इजियर, रिपोर्ट्स डायरेक्टली बन जाएंगे. सो by gaining the knowledge of a product or a service, हमें उससे यूटिलिटी मिलती है. उस यूटिलिटी को बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी. एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट नॉलेज यूटिलिटी. The advertisement makes consumer aware about the use of the product. So advertisement utility. Advertisement creates which utility? Knowledge utility. Advertisement or pamphlets, user manuals, यूजर मैन्युअल्स. देखो प्रोडक्ट के साथ आते हैं, देखो हाउ टू यूज इट बोल के एक रहता है, राइट. अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वो चेक करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. सो दैट गिव्स यू नॉलेज हाउ टू यूज द प्रोडक्ट. सो एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट्स, ब्राउचर्स, यूजर मैन्युअल्स, they give information about the use of the product, and they create which utility? Knowledge utility. All utilities put together is called as production in the economics. Production means creation or addition of the utilities. लिख लेना, production is creation or addition of the utility. Different utilities. Of different utilities. ये जो यूटिलिटी का डिस्कशन किया है, दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर प्रोडक्शन चैप्टर. प्रोडक्शन चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ में दे हैव टोल्ड यू ऑल दीस 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज. एक ही पैराग्राफ में खत्म किया है. एंड उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटीज. एंड व्हिच आर दोस यूटिलिटीज? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, पोजीशन एंड नॉलेज. These 6 utilities. So any production process creates this utility. Try to understand. So production is not just input to output. No, production is beyond that. Even after sales services are also included in the production. After sales services, we are talking about the service utility. So that is also the part of the production. Input acquire करने से उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने तक, उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल करने तक, उसके बाद वो कस्टमर के घर पे लेके जाने तक, वहां पे उसको इंस्टॉल करवा के देना, फिर उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देना. All this process creates different utilities, and put together it is called as production in the economics. So production is not just input to output, it is more than that. It is a creation or addition of different utilities. A person, a human cannot create a matter. However, he can add utility to the matter. We cannot create the wood, but we can add utility to the wood. We cannot create the water, but we can add utility. Try to understand. सनशाइन हम नहीं क्रिएट कर सकते, बट उस सनशाइन से हम उसकी यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. सोलर पावर्स एंड एक्सेट्रा. टाइड्स हम नहीं बना सकते, बट टाइड से हम
उसके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसमें यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैन कैन नॉट क्रिएट द मैटर, हाउएवर ए मैन कैन इंक्रीज द यूटिलिटी टू द मैटर. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द टाइप्स यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी. बराबर. देन कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटी. Basically there are two concepts that everybody knows, I expect सबको पता है, but I will discuss. First is, because ये जो हम सीखने जा रहे हैं ना, that is very important. Yeah, first concept is a marginal utility, MU. And second concept is a total utility. उसके पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो डिस्कस करने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड एडिशन लिख लेना, हर चैप्टर में लगेगा. रिलेशन बिटवीन मार्जिनल and total. It is utility, it can be cost, it can be revenue, it can be product, anything. Marginal revenue, total revenue. Marginal product, total product. ठीक है. Then marginal cost, total cost. Marginal utility, total utility. So हर चैप्टर में you will find this thing, marginal and total. और मैं इसका रिलेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान देना. Example, overs and score. 30th ओवर पे स्कोर इज 220. जल्दी क्रिकेट का जल्दी समझ में आएगा इसलिए. 31st ओवर के एंड में स्कोर इज 228. 32nd ओवर के एंड में स्कोर इज 235. 33rd ओवर के एंड में इट इज 235 ओनली. 34th ओवर के एंड में इट इज 250. Try to understand. So what is a marginal? Marginal means addition, one extra. Marginal means one extra. Marginal means one extra. Now if I ask you runs scored in 31st ओवर, मैं बोलता हूं 31st ओवर में कितने रन्स बने, यू कैन पिंग मी, कितने रन्स बने 31st ओवर में. इफ दिस इज योर स्कोर, 30th ओवर के एंड में 222, 31st ओवर के एंड में 228 रन्स है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि 31st ओवर में कितने रन्स बने. चलो पिंग जल्दी करो, ये क्रिकेट का तो हर एक को आएगा. आप बोलोगे सर 8 रन्स बने. 31st ओवर में 8 रन्स बने. सो एक जब एक्स्ट्रा ओवर हो गई, ध्यान देना, वे 30th ओवर के एंड में 220 रन्स थे. जब एक ओवर डाली गई, रन टोटल स्कोर इंक्रीज बाय 8. 32nd ओवर में कितने रन्स बने? 32nd ओवर में पहले 228 था, बिगिनिंग ऑफ 32nd ओवर 228 रन से एंड में 235 हो गए, मतलब कितने 7 रन बने. बराबर.
सो कैन आई से 32nd ओवर ने हमारे स्कोर में, टोटल स्कोर में 7 रन का इजाफा किया, 7 रन का एडिशन किया. एंड 33rd ओवर इज अ मिडन ओवर, 0 रन बने. सो बिकॉज ऑफ वन एडिशनल ओवर my score has not changed. My score has remained constant. Addition is a 0. However, 34th over is really good for the batting team because उस ओवर में 15 रन बने और आप बोलते हो इस ओवर में धोया क्यों? Because you can find because of one extra over your total has increased by 15. Like यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओवर की वजह से 8 रन इंक्रीज हुए. यहाँ पे एक ओवर की वजह से योर स्कोर इंक्रीज बाय 7. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओवर की वजह से योर स्कोर रिमेन कांस्टेंट. एक एक्स्ट्रा ओवर के बाद जो स्कोर में चेंज हो रहा है दैट इज मार्जिनल स्कोर, और रन स्कोर्ड इन दैट ओवर इज अ मार्जिनल स्कोर. सो आई विल से दिस इज मार्जिनल. Simple example. So the first over plus second over plus third over plus fourth over up to 50th over करोगे तो you will get total runs scored in the 50 overs. So first over का marginal score, second over का marginal score, third over का marginal score up to 50th over. You will get total score. So marginal plus marginal plus marginal is a total. And what is a marginal? Change in the total is a marginal. Change in the total is a marginal. दूसरा एग्जांपल आपके मार्क्स. You attempted first MCQ. It is correct. You will get 1 mark. Your total score is 1. You attempted second question. It is correct. You will get 1 mark. Your total score is 2. You attempted third question, but it is wrong. You will get minus 25 marks. Your score will reduce to 1.75. Fourth, you left blank. आपको 0 मिलेंगे. Your score will remain 1.75. Fifth question you attempted. It is wrong. You will get negative marks, 0.25. Your score is 1.50. Sixth question आपने attempt किया. It is correct. Now your score is 2.50. This is your total. And this is your marginal. So what is the marginal? आपने पहले 0 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ध्यान देना. 0 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आपका टोटल 0 था. बट व्हेन यू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ 1 क्वेश्चन योर टोटल स्कोर इंक्रीज बाय 1. क्या बोला मैंने? बिकॉज ऑफ 1 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, योर स्कोर इंक्रीज बाय 1. एक अटेम्प्ट करने की वजह से आपका टोटल स्कोर 1 से इंक्रीज हुआ. When you attempt another additional 1 question, your score again increase by 1. Addition is a positive. You attempted additional 1 question, third question आपने attempt किया. However, your total score has reduced by 0.25. Additional question has resulted in decrease in the total. Additional question attempt करने की वजह से आपका total decrease हुआ है. So I will say this third question has like pull down your score, total decrease की है. Fourth question जब आप attempt करोगे, मतलब third से fourth attempt किया, additional question attempt किया, your score has remained constant. If you attempt fifth question, your score has again decreased by 0.25.
Sixth question has increased your score by 1. So you say मुझे फर्स्ट क्वेश्चन को 1 मार्क मिले, बराबर. आप बोलते हो मुझे सेकंड क्वेश्चन को 1 मार्क मिले, थर्ड क्वेश्चन को मुझे -0.25 मिले, फोर्थ क्वेश्चन को 0 मार्क्स मिले, फिफ्थ क्वेश्चन को -25 मार्क्स मिले 0.25, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन को आप बोलते हो मुझे +1 मार्क्स मिले. सो जो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने से, अटेम्प्ट करने से टोटल में जो चेंज हो रहा है, दैट इज मार्जिनल. चेंज इन द टोटल मार्क्स बिकॉज ऑफ एडिशनल क्वेश्चन अटेम्प्टेड इज ए मार्जिनल मार्क्स. क्या बोला मैंने? यहां पे change in the total score because of one additional over is a marginal runs. यहां पे मैं बोल रहा हूं change in the total score because of one additional question attempted is a marginal marks. यहां पे runs, marginal runs cannot be negative. जनरली क्रिकेट में पेनल्टी रन्स नहीं होते, कभी कभी होते भी है, लाइक हम सामने वाले टीम को रन्स देते हैं, ऐसे हुआ भी है. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की मैच थी, उसमें हुआ था. तो इंडिया टीम को 5 रन्स ऑलरेडी दे चुके थे बिकॉज ऑफ सम पेनल्टी टू द पाकिस्तान टीम. तो हमारा जब मैच स्टार्ट हुआ, हमारी जब इनिंग स्टार्ट हुई, हम चेस कर रहे थे, तब हमारा स्कोर डायरेक्टली 5 से स्टार्ट हुआ था. मतलब क्रिकेट में निगेटिव नहीं होता है, इसलिए या तो आपका मार्जिनल रन्स 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे. बट इन सीए एग्जाम जहां पे निगेटिव मार्किंग है, मार्जिनल मार्क्स कैन बी निगेटिव, मार्जिनल मार्क्स कैन बी पॉजिटिव 0 और कैन बी पॉजिटिव. इफ मार्जिनल मार्क्स आर पॉजिटिव मतलब आपका टोटल स्कोर इंक्रीज होगा. व्हेन मार्जिनल मार्क्स आर 0 योर टोटल स्कोर विल रिमेन सेम. बट व्हेन योर मार्जिनल मार्क्स, एडिशनल मार्क्स आर नेगेटिव, योर टोटल स्कोर विल डिक्रीज. मैं रिलेशन समझा रहा हूं बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल. दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन और हमें पूरे फाउंडेशन में इस पे स्टडी करना है. सो व्हाट इज द रिलेशन? मार्जिनल, ध्यान देना, एंड टोटल. व्हेन मार्जिनल इज इंक्रीजिंग, is positive, total is increasing. When marginal is 0, total is constant, does not change. एक आधी और मिडन गई तो आपका स्कोर सेम रहता है. कोई क्वेश्चन आप लेफ्ट ब्लैंक रखोगे तो टोटल स्कोर सेम रहेगा. So additional runs in that over is 0, marginal runs in that over is 0, therefore total score remains same. Marginal marks in that question is 0, therefore your total marks remains constant. If marginal is a negative, total will be decreasing. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. ये सबके लिए एप्लीकेबल है. मार्जिनल यूटिलिटी के लिए एप्लीकेबल है. दिस एप्लीकेबल फॉर यूटिलिटी, यूटिलिटी चैप्टर में यूटिलिटी के लिए, प्रोडक्शन चैप्टर में प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट चैप्टर में कॉस्ट के लिए, रेवेन्यू चैप्टर में रेवेन्यू के लिए, एंड प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट. एवरीवेयर यू विल लर्न मार्जिनल एंड टोटल. लाइक यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट, कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट के लिए मार्जिनल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट. एवरीवेयर दिस कंसेप्ट हैज सेम implication. Marginal decides the total, total does not decide the marginal. Always remember, marginal decides the total, total does not decide the marginal. जब मार्जिनल खुद पॉजिटिव है, मार्जिनल खुद इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, तो टोटल भी पॉजिटिव इंक्रीज होती होगी. क्या इंक्रीज होती है? बिकॉज मार्जिनल की वजह से टोटल बनता है, मार्जिनल की वजह से टोटल बनता है.
अगर मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल इंक्रीजिंग होगी, मार्जिनल जीरो है तो टोटल जीरो होगी, मार्जिनल निगेटिव है तो टोटल डिक्रीजिंग होगी. एग्जाम्पल, मार्जिनल आउटपुट is positive, total output will be increasing. Marginal output is zero, total output constant होगा. Marginal output अगर negative है, output cannot be negative. But मान के चलते हैं कि marginal output negative है, तो total output will be negative. होता है, marginal output negative होता है. Yes. Then cost, marginal cost positive है, तो टोटल कॉस्ट पॉजिटिव होगी. मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट होगी. मार्जिनल कॉस्ट निगेटिव है तो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग होगी. जनरली राइट, कोई कॉस्ट निगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज व्हेन यू परचेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन यू एम्प्लॉय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी प्राइस तो निगेटिव नहीं हो सकती ना. बट मैं समझा रहा हूं. Revenue, when marginal revenue is positive, total revenue is increasing. When marginal revenue is a zero, total revenue is a constant. And when marginal revenue is a negative, total revenue is decreasing. Try to understand. So ये जो concept है, ये जो point है, that is applicable everywhere. मैं इसको और elaborate करता हूं, ध्यान देना. Generally हम ऐसे क्रिकेट में बोलते हैं कि सपोज ये रन का पैटर्न है, लास्ट 5 ओवर का स्कोर बोल रहा हूं. एक में 15 रन बने, दूसरे में 20 रन बने, तीसरे में 25 रन बने, किसी में 26 बने. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. किसी में 30 रन बने. एग्जाम्पल, लास्ट 5 ओवर्स आप बोलते हो बहुत धोया. क्यों? बिकॉज एवरी ओवर अगर आप देखोगे, एवरी ओवर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द टोटल स्कोर. एंड आप देखोगे कि स्कोर बहुत इंक्रीज हुआ है. स्कोर इंक्रीज हो रहा है. अच्छा, यहां पे कितने से इंक्रीज हुआ? इस ओवर में 15 से. इस ओवर में कितने से इंक्रीज हुआ होगा? दिस इज ओवर्स. लेट मी, ओके, एक सेकंड, ऐसे लिखता हूं, ध्यान देना. सपोज 5 ओवर्स की मैच है, 5 ओवर्स की मैच है. दिस इज फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर. बीएमसीसी में होता है, देखो 5 साइड बोलते हैं. देखो 5 ओवर्स एंड या 6 साइड्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. वो बच्चों में मैच लगाते हैं 5-5, 6-6 ओवर की. सपोज हमारी 5 ओवर की मैच है, तो आप बोलोगे दिस इज योर मार्जिनल स्कोर. आपने हर ओवर में कितने रन्स बनाए, उस ओवर में कितने बनाए, वो मार्जिनल रहेगा. फिर आप टोटल ढूंढोगे ना. टोटल फर्स्ट ओवर में 15 बनाए, तो फर्स्ट ओवर के एंड में टोटल कितना हो गया? 15. सेकंड ओवर में 20 रन बनाए, सो पहले 15 है, सेकंड ओवर कंट्रीब्यूटेड एडिशनल 20 रन, योर टोटल स्कोर इज 35. फिर थर्ड ओवर कंट्रीब्यूटेड 25, टोटल स्कोर इज 50. फोर्थ ओवर कंट्रीब्यूटेड 26 इन योर टोटल स्कोर, सो ये हो गया आपका 76. एंड लास्ट ओवर कंट्रीब्यूटेड 30, सो योर टोटल स्कोर इज 106. एग्जाम्पल है ये. So you can see each over contributes more than the previous over. फर्स्ट ओवर ने 15 कंट्रीब्यूट किया टोटल में, सेकंड ओवर में 20 कंट्रीब्यूट किया, थर्ड ओवर में 20, फोर्थ ओवर में 26 एंड फिफ्थ ओवर में 30. इफ यू चेक, एज मार्जिनल इज ए पॉजिटिव, टोटल इज इंक्रीजिंग. आप देख सकते हो टोटल इंक्रीज हो रही, 15 से 35, 35 से 50, 50 से 76, 70 से 106. एंड द रेट एट विच इज इंक्रीजिंग, रेट देखो 15 से इंक्रीज हुआ, 20 से इंक्रीज हुआ, मार्जिन से इंक्रीज होता है ना, 25 से इंक्रीज हुआ. अगर कहां पे मेरा रॉन्ग है तो मुझे बोलो. 50 60 होना चाहिए क्या? 10 से इंक्रीज किया, ठीक है, 60.
फिर ये आपका कितना रहेगा, 86 रहेगा और 116, ठीक है। सो यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ, 26 से, और यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ, 30 से। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, when marginal is increasing मतलब पॉजिटिव, total is also increasing, yes, and total increases at a increasing rate because marginal decides the total. Always remember, marginal decides the total. अगर marginal खुद increasing है तो total भी increasing रहेगी, and marginal increasing rate से increase हो रहा है तो total भी increasing rate से increase होगी। Therefore मैं इसको और डिटेल में लिखता हूं, ध्यान देना, marginal and total increases at increasing rate. मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव एंड एट ए इंक्रीजिंग रेट। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग रेट। Marginal is a positive, it is increasing at an increasing rate. Total also increases at an increasing rate. Second, if marginal is a positive but it is decreasing rate, इंक्रीज हो रहा है बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लाइक एग्जांपल, फर्स्ट ओवर में 15 रन, सेकंड ओवर में जस्ट 10 रन, फिर 8 रन, 6 रन एंड सपोज 4 रन। आपका टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट ओवर के एंड में 15, सेकंड ओवर के एंड में 25, फिर 33, फिर 39, फिर 43, लाइक दैट। एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज ए पॉजिटिव, टोटल इज इंक्रीजिंग। एज लॉन्ग एज, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल इंक्रीज होती है। किस रेट से इंक्रीज होती है, डिपेंड्स। अगर खुद मार्जिनल जोर जोर से दौड़ रहा है, मार्जिनल दौड़ रहा है एंड उसका स्पीड बहुत ज्यादा है तो टोटल भी दौड़ेगा एट ए फास्टर रेट। मार्जिनल दौड़ रहा है बट धीरे धीरे दौड़ रहा है, इन दैट केस टोटल भी दौड़ेगा बट स्लो रेट से दौड़ेगा, बिकॉज मार्जिनल डिसाइड्स द टोटल। देखो ना यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज हुआ 15 से, फिर इंक्रीज हुआ 10 से, फिर इंक्रीज हुआ 8 से, फिर 6 एंड फिर 4। So can I say when marginal increases at a diminishing rate, total also increases at a diminishing rate? Why? Increases at decreasing rate or diminishing rate. ठीक है, नेक्स्ट आगे। पहला रिलेशन क्या समझा मैंने, सबसे पहले मैंने रिलेशन समझा कि मार्जिनल अगर पॉजिटिव है तो टोटल इंक्रीज होती है। क्या बोला मैंने, मार्जिनल अगर पॉजिटिव है तो टोटल इंक्रीज होती है, वही मैं समझा रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं मार्जिनल पॉजिटिव है मतलब, राइट, वो पॉजिटिव कैसे है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मार्जिनल इंक्रीज होता है तो टोटल इंक्रीज होगी, बट किस रेट से इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग रेट से। मार्जिनल पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, टोटल इंक्रीज होगी बट धीरे धीरे इंक्रीज होगी। क्या बोला, ध्यान देना, बिकॉज ये मुझे हर चैप्टर में लगेगा, इसलिए मैं इस पे इतने एम्फेसाइज कर रहा हूं। फर्स्ट मैंने बोला मार्जिनल पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, टोटल भी इंक्रीज होगी और हायर रेट से इंक्रीज होगी। मार्जिनल पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है तो टोटल इंक्रीज होगी बट डिक्रीजिंग रेट से होगी। मार्जिनल खुद ऊपर जाएगा तो टोटल को भी
स्पीड से ऊपर लेके जाएगा। मार्जिनल अगर नीचे आ रहा है वो टोटल को ऊपर जाने देगा बट एट ए लोअर रेट, स्लोली। देन व्हेन मार्जिनल इज जीरो, टोटल इज कांस्टेंट, बिकॉज खुद वो जीरो है तो टोटल में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, ठीक है। मार्जिनल पॉजिटिव, टोटल विल इंक्रीज, marginal zero, total will remain same, and if marginal is a negative, तो ये मत बोलो डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं पूछा जाता कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल निगेटिव है तो ये नहीं को पूछते कि किस रेट से निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव, टोटल विल डिक्रीज, एज सिंपल एज दैट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे हर चैप्टर में लगेगा। ये जिसको समझ में आ गया उसके लिए मैक्सिमम चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, यू हैव टू हेल्प मी आउट। मैंने लिखा यहां पे यूनिट सोल्ड, और मैंने यहां पे लिखा है टोटल रेवेन्यू। When I sold first unit, my total revenue is 100. When I sold second unit, example, my total revenue is 180. If I sold third unit, my total revenue is 150. मैं example दे रहा हूं, कोई ऐसे इसके पीछे लॉजिक नहीं है कुछ। When I sold fourth unit, my total revenue is 140. You have to tell me marginal revenue. Marginal is change in the total. Marginal is change in the total because of change in the units. Try to understand. When there were 0 units sold, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, when there were 0 units, total revenue was also 0. When you sold first unit, आपने जब फर्स्ट यूनिट सेल किया, यूनिट में एक की इंक्रीज है, वन एडिशनल इज, वन एक्स्ट्रा इज मार्जिनल। जब आपके 0 यूनिट सोल्ड थे तो रेवेन्यू भी 0 था। When you sold first unit, your total revenue increased from 0 to 100. So change in the total revenue is 100 divided by change in the units 1. I will say marginal revenue is of first unit. Marginal revenue of the first unit is 100. Marginal revenue of the first unit is 100. मतलब फर्स्ट यूनिट ने टोटल रेवेन्यू में 100 का कंट्रीब्यूशन किया। सेकंड, इफ आई सोल्ड सेकंड यूनिट, एक से और एक यूनिट सेल किया तो नंबर ऑफ एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल कर गए तो टोटल रेवेन्यू में कितने का डिफरेंस आ गया, 80 ऐड हो गए। टोटल रेवेन्यू 100 था, व्हेन यू सोल्ड वन यूनिट, व्हेन यू सोल्ड एडिशनल सेकंड यूनिट, योर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज टू 180. सो कैन आई से द सेकंड यूनिट एडेड 80 to your total revenue. So change in the total revenue 180 minus 100, 80. Upon change in the units 2 minus 1, answer is 80. So I will say the marginal revenue of the second unit is 80. क्या बोलूंगा मैं? Marginal revenue of the second unit is 80. Then I sold third unit and I find that my total revenue, right, my total revenue, actually my total revenue should increase, negative नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा रेट कम करता हूं, so I should take मुझे वहां से 80 से इंक्रीज किया, उसको 50 से इंक्रीज करना है, तो I should take 230, और मुझे इसको 40 से इंक्रीज करना है तो 270. ठीक है, देखते हैं। When I sold third unit,
my total revenue increased from 180 to 230. So can I say, because of third unit, my revenue, total revenue increased by 50. Therefore, change in the total revenue is 50 upon 1. So मैं बोलता हूँ third unit contributed 50 to my total revenue. Third unit contributed 50 to my revenue. 3 units का revenue 230 है. 3 units का revenue 230 है. But third unit का revenue 50 है. 3 units put together, total revenue is 230. Third unit का revenue 50 है. So third का revenue, marginal revenue of third unit. 3 units का revenue, 1 plus 2 plus third unit, that is the total revenue. And the fourth unit contributed, right, 40 to my revenue. So marginal revenue of fourth unit is 40. So यहाँ पे लिख लेना, marginal is change in total, and total is addition of marginals. ठीक है. एंड ये एग्जांपल दिया मैंने, यही हम आगे भी करेंगे. सपोज मैं ऐसे बोलता हूं, अनदर एग्जांपल. सपोज मैं बोलता हूं कि कोहली ने 80 रन्स किए. सो बिकॉज ऑफ कोहली योर टोटल स्कोर इज इंक्रीज बाय 80. सो मार्जिनल स्कोर ऑफ कोहली इज 80. धोनी ने 50 रन्स किए. मैं बोलता हूं कि मार्जिनल रन्स स्कोर ऑफ धोनी, उसके वजह से टोटल स्कोर 50 से इंक्रीज हुआ. एंड सपोज देयर आर एक्स्ट्रा रन्स 10. सो व्हाट इज योर टोटल स्कोर? सपोज ये दोनों ही खेले 150, it will be 140. So marginal score of Kohli plus marginal score of Dhoni plus extras is your total score. Example. So total is marginal plus marginal plus marginal. Like extra is like a extra player. समझ में आ रहा है? So marginal put together makes total. Marginal puts together makes total. इसलिए जो एंड में प्लेयर आते हैं, वी नो दे वोंट स्कोर मच बट देयर मार्जिनल विल बी पॉजिटिव, इसलिए हम उनको खेलने को भेजते हैं. अगर किसी प्लेयर की वजह से स्कोर निगेटिव होता तो उसको हम भेजते नहीं, बट हमें पता है कि चलो 2 रन भी निकाल के आएगा तो भी 2 रन से स्कोर इंक्रीज होगा. 10 रन निकालेगा तो 10 रन से स्कोर इंक्रीज होगा. 15 रन निकालेगा तो 15 रन से स्कोर इंक्रीज होगा. सो एवरी एडिशनल रन स्कोर बाय लाइक प्लेयर विल एड द टोटल. टोटल इंक्रीज होगी, इसलिए एवरी मार्जिनल इंक्रीजेस द टोटल. पॉजिटिव है तो टोटल इंक्रीज होगी. क्लियर है? अगर निगेटिव है तो टोटल डिक्रीज होगी. वही मुझे समझाना था, और ये मेरा रिलेशनशिप है बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने क्या बोला? लास्ट 2 मिनट्स एंड देन वी विल वाइंड अप. मार्जिनल दौड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, स्पीड से दौड़ रहा है, तो टोटल भी स्पीड से दौड़ेगा. मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है, मार्जिनल ऊपर जाएगा, टोटल भी ऊपर जाएगा और स्पीड में जाएगा. क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना. मार्जिनल खुद ऊपर जा रहा है तो टोटल को भी ऊपर लेके जाएगा और स्पीड में लेके जाएगा. मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, टोटल ऊपर जाएगी बट स्पीड स्लो हो जाएगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा. जब मार्जिनल 0 होगा टोटल कांस्टेंट होगा. एंड जब मार्जिनल खुद निगेटिव होगा, खुद निगेटिव है मतलब एडिशन इज अ निगेटिव, सो टोटल विल डिक्रीज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यूटिलिटी में सीखना है, कॉस्ट में सीखना है, प्रोडक्शन में सीखना है, रेवेन्यू में सीखना है, प्रॉफिट में सीखना है, हर जगह पे. ठीक है? सो
मैक्सिमम थिंग्स यू ऑलरेडी नो, लाइक यूटिलिटी एंड एवरीथिंग। कल से हम प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, राइट? कंसेप्ट में जाएंगे। ये समझ लेना मार्जिनल एंड टोटल, राइट? इस पे एक्सपर्टाइज अच्छे से होना चाहिए, देख के आना चाहिए, ठीक है? ओके, सो मार्जिनल इज चेंज इन द टोटल एंड टोटल इज एडिशन ऑफ द मार्जिनल। चलो आज यहाँ पे रुकते हैं, कल मैं और अंदर जाऊंगा इस चैप्टर में, किसी के डाउट्स नहीं है, ठीक है? कल नॉर्मल शेड्यूल रहेगा, मैथ्स फॉलोड बाय अकाउंट्स, देन लॉ एंड इन द इवनिंग इको, ठीक है? थैंक यू।